which is in the crores of rupees. Rajasthan is the largest state of the country according to the area. The distance of rural area is several kilometers from the urban area of the district. Then most of Goshala are located in rural area. In view of these circumstances, web applications are created to include all Goshala in this process. A web-based system has been set up to provide convenience for the application, online registration of Goshala and online ad transfer to Goshala bank account. Next. To develop online application system or implementation of Goshala scheme of Dr. Gopalan in speedily to transparent manner. To develop transparent, contentless, paperless, hassle-free system, online application system, individual beneficiary scheme of Dr. Gopalan is to application screening and less document work for the enforcement authority through the digitization. मैम मेनली हमारे क्या है कि ये 2016 में हमारे एक निधि रूल्स बना था जिसके तहत हम सभी गौशालाओं को ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर फॉडर एंड वाटर और इसके लिए जो हमने एक एप्लीकेशंस बनाया है नेक्स्ट विजन मिशन पर ऑब्जेक्टिव है हमारे इंटर गोपालन वेब एप्लीकेशन प्रिपेयर फॉर द रिलीज ग्रांट डायरेक्टली टू अ बैंक अकाउंट फॉर एलिजिबल गौशाला रजिस्ट्रेशन इज डन अंडर द गौशाला ये भी हमारा ऑनलाइन है सारा डिजिटल सिग्नेचर द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन भी हमारा थ्रू आधार उसका ऑथराइजेशन होता है और टू प्रोवाइड इजी वेब एप्लीकेशन सिस्टम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिशियरीज क्रिएशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड सभी गौशालाओं को हमारे इसमें डेटा सारा क्रिएट किया गया एक जगह पे ये एक्चुअली इट इज द क्लोज सिस्टम एप्लीकेशन अंडर single window of Raj SSO. It's to provide easy web-based all system online application of the beneficiary and creation of data record, thereby avoiding duplications. All the detail of information on the public domain related to the Goshalas. To generate various report, district-wise, tehsil-wise, Goshala-wise, payment status, etc. Solutions, ma'am, इसका ये रहा कि to web-based application provider apply the grant, ad and Goshala registration and other schemes. इसमें transparency, reduce time, web portal for the online application of the grant of ad Goshala registration for the implementation skills of beneficiary of the director government designed by the REAL. Introduce concept of beneficiary avoid to paperless and speedily work is provided all detailed information in the public domain. Creating master data of the application of all Goshalas before implementation. We going to in pilot project with 8 district performing user acceptance test, ensuring split release to as per proposed requirement. Prepared हमने इसकी user manual, preparing user manual, organize multiple training session for environment authority to release video PPT and end user, phase-wise preparation for the application, continuous updations of the system based on the feedback from the district officer and Goshalas, provided decided help to resolve to general and technical queries. Next one, features. Following features are provided at the beneficiary levels. Web-based simplified application from the SSOID registration. Live interface with the information filling application scheme information. SMS notification user no application status. Faculty to apply to grant, ad and Goshala registration scheme at a time. Uploading the documents, bill verification, beneficiary in the grant is ad application. Following feature of providing block and district level, provision of the revert application block level and district level with remark. मान जो कोई भी मान लो आप गौशाला वाले नॉन नहीं होते इतने फ्रेंडली नहीं है तो उनकी कोई भी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज आती है जो कि उनको हमें रिक्वायर्ड होती है कि उसको वापस से वो ठीक करे तो हमने इसमें रिवर्ट का प्रोविजन भी दिया हुआ है
वो ब्लॉक लेवल, जैसे रजिस्ट्रेशन का तो ब्लॉक लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है उसका, कि आप उसको वापस से उसको कोई एक आपने कोई डॉक्यूमेंट्स फिर भी कोई गलत लग गए या कोई वेरीफाई नहीं है तो उसे रिजेक्ट करने के बजाय उसको वेरीफाई वापस से रीलोड करने के लिए हमारा उसको रिवर्ट का प्रोविजन दिया हुआ है इसके अंदर, है ना। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी फीचर फ्रॉम ब्लॉक लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एचओडी लेवल इन डिफरेंट लॉगिंग, स्टेप वाइज अवेलेबिलिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द स्क्रूटनी, सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। मैम इसमें हम जैसे एक है कलर वाइज डिस्प्ले ऑन द एप्लीकेशन स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे हमने इसे कलर वाइज कैसे किया है कि कोई न्यू एप्लीकेशन आती है उसका कलर अलग रहेगा, आपने उसे चेक किया वेरीफाई किया तो उसका कलर अलग आपको विजिबल होगा, और आपने उसे एक्सेप्ट किया तो उसका अलग होगा, और आपने रिजेक्ट किया तो उसका अलग से कलर से, मतलब आपको इजी टू यूज हो जाएगा प्रोवाइडिंग। और हमने इसका जो प्रोवाइडिंग कन्वर्जन ऑफ आईएनआर इन फिगर, आईएनआर इन वर्ड, इन द ग्रांट अमाउंट इन द करोड्स, क्योंकि करोड़ रुपीज में इसका ये है, तो आप कोई भी वर्ड के अंदर आप उसके रुपीज को आप एंटर करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले वर्ड में भी उसको शो होएगा साथ साथ, जिससे किसी प्रकार की गलती ना हो। इसमें जैसे ये है कि हमने पहले सभी का डेटा ऑलरेडी एप्लीकेशन में हमने सबका डेटा लिया हुआ है, तो ऑनलाइन जब भी वो अपनी एसएसओआईडी से लॉगिन करेगा, ऑनलाइन एड एप्लीकेशन बाय एनी गौशाला ऑलरेडी अवेलेबल इन द सिस्टम, फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिवर्ट करते हैं, रिवर्ट करके बाद गौशाला द्वारा मॉडिफिकेशन बाद दोबारा भेज दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है तो प्रिपेयर प्रपोजल होता है, जो कि हमारे कलेक्टर लेवल पे उसकी एक कमेटी बनी है, जिला सलाहकार समिति, जो उसको एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद उसकी एडमिशन से सेंक्शन इसी से निकलती है, फिर वो अपने बिल अपलोड करता है, उसके आफ्टर उसके फाइनेंशियल सेंक्शन निकल के पे मैनेजर से सभी कनेक्टेड हैं, थ्रू पे मैनेजर डायरेक्ट पेमेंट उसके अकाउंट में हो जाता है, जिसकी सारी रिपोर्ट हमारे इस पे आप देखी जा सकती है। डेटा इज रेगुलेटेड ऑपरेट एलिजिबल गौशाला ऑफ द राजस्थान इज स्टोर विद सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें सारा सभी गौशालाओं का डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम से, मतलब हम एक जगह आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और सिंगल प्लेटफॉर्म है गौशालाओं, ये सभी स्कीम्स के लिए, डायरेक्टेड गोपालन की सभी स्कीम्स के लिए एक ही से आप लॉगिन कर सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन इज एबल टू नो एप्लीकेशन स्टेटस थ्रू एसएसओआईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल से, आपको सभी स्टेज पे आपको इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या वेरीफाई हुई, रिजेक्ट हुई, अब वो एसएमएस के थ्रू आपके सभी आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पे और एसएसओआईडी पे मिलेगा आपके, जहां से आपने लॉगिन किया है। हम इसमें स्कीम रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड पब्लिक डोमेन along with video and PPT for the beneficiary for local language. The process were made paperless, updating all document related गौशाला in master data, कि उसको वापस बार बार अपलोड नहीं करना पड़े, उसके सारे मास्टर डेटा ऑलरेडी गौशाला में, केवल उसको अपना लॉगिंग करके जो रिक्वायरमेंट ईयरली वाइज डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करके अपनी लॉगिंग कर सकता है। चैलेंज यही थे कि इसका एप्लीकेशन पे सभी गौशालाओं को एनरोल करना, all Goshala managers prepare for go online by telling them to benefit online process in the coming time. A database developed to directed Gopalna regarding registration Goshala of Rajasthan 3636 to accumulate to beneficiary who are not techno savvy, to ensure security of data, to ensure genuineness of upload document, process of providing payment through online simplified by pay manager from Goshala web application. आउटकम यही है मैम कि इसकी नियर अबाउट 11.47 lakhs cow maintained in the 2314 eligible Goshala of the state. Assisting amount about 1100 crore were distributed through the web application. Initially, the process of application difficult phase to financial transaction was resolved at a time process was successfully completely. Transparency has been increased in the grant distribution of process. The time taken by the department distribute grant has been reduced. Paperless work हो गया. Comparison यही हो गया मैडम कि नीड टू, पहले ये था नीड टू अप्लाई स्कीम मैनुअली एंड सेंड डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड हेड ऑफिस, सिंगल प्लेटफॉर्म अप्लाई हो गया उसका, और प्रीवियस और टाइम कंज्यूमिंग, ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मैनुअली रैंडम सिलेक्शन लीड टू चांस ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, इसमें कोई चांस नहीं है रैंडमली सिलेक्शन करने का। चांस टू स्पेशल बेनिफिट टू बेनिफिशियरी, नो चांस। एवरी ईयर बेनिफिट रिक्वायर्ड सबमिट सेवरल डॉक्यूमेंट्स,
with introduction of online system, related documents are saved in master data. User are not able to know application previous status. यहाँ पर वो उसको हर चीज की अवेलेबिलिटी उसके एसएमएस के थ्रू हर स्टेज पे उसको मिलती है. चांस टू ह्यूमन एरर, नेग्लिजिबल चांस यहाँ पर है. There is no previous to obtain statics report in the previous system. Dashboard is provided to generate statistical report. In the past, the ad is calculated the basis of the cow program found less than application and physical variation. Now, ad is calculated basis of the minimum grant amount of the online system. Scalability है मैम. The same framework model can be replicated to the other scheme, to the department, and also is the selection of the state scheme related to the animal husbandry. फ्यूचर स्कोप है मैम हमारा ये है कि एपीआई एक्शन इज टेकन गेट टू डेटा टू काउ इनफ टैग ऑनलाइन. क्योंकि अब भी क्या होता है मैम, एक तो वो अप्लाइड करता है, उसके बाद उसको एक भौतिक सत्यापन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उसकी वेरीफाई करता है. एक इनाफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो सभी एनिमल्स में टैग लगाते हैं, तो हमारा उसका एपीआई करने से उससे क्या होगा, उसको अपनी वो मॉनिटरिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितनी उसकी इनाफ की टैगिंग हुई उसी हिसाब से हम उसके एपीआई कर देंगे, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन उसको वो डायरेक्ट अपनी उसको कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा. जितनी भी स्ट्रे काउ है वो कैन बी बेनिफिट फॉर द स्कीम टू एस्टेब्लिश देम इन द गौशाला. आप जो गौशाला में रखें तो आप उसका हम बेनिफिट उसको भी हम सभी इसी ग्रांट के थ्रू दिया जाता है. डेटा जनरेट विल बी यूजफुल फॉर असेसिंग कैटलमैन फार्मर डिमांड ऑफ स्कीम, region wise regulation, inspection and process of scheme at the end level. Dashboard information statistics reports helpful for monitoring progress of schemes. मैम ये इसका हमारा एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट्स है जिसमें हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन का शो होता है, नीचे आपके जो अप्लाई करते हैं वो उसके दिखते हैं. ये तीन दो ये अदर्स के बीच वाला उसमें एप्लीकेशन जो एड के लिए लेफ्ट हैंड साइड में उसके रजिस्ट्रेशन के लिए तीनों एक साथ चल सकते हैं. और ये डैशबोर्ड है जो 4th नंबर पे, ये हर चीज पब्लिक डोमेन पे है कि कितनी गौशाला, आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे अजमेर के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग अलग रिपोर्ट आएगी. फिर उसके अंदर जाएंगे तो हर तहसील वाइज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट दिखेगी. फिर तहसील वाइज में हर विलेज वाइज गौशाला दिखेगी, गौशाला की हर रिपोर्ट फिर उसके बाद पब्लिक डोमेन पे आपको देखने को इसके ऊपर मिलेगी पूरे डेटा के साथ, उसके एनिमल्स काउंटिंग. थैंक यू मैम. It's quite good project, but what I feel is it's something which normally done by any project management team. What is special about it? Because registering online, disbursing through, verification process and digital signature, all that is going on for years now. So what is your innovative input? Ma'am, innovative, it is, it's a good project, definitely good project, because it has been done in all cases, but goshalas are something little new to me. I haven't seen goshalas been coming under these licenses and all that are normal things. Goshalas are different, but the process remains more or less same. राइट मैम. लेकिन मैम क्या एक्चुअली मैम ये अमाउंट है ना करोड़ों रुपीस में, नियर अबाउट नाउ 9 मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट 900 करोड़ रुपीस हम ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इट्स अमाउंट इज वेरी हाई. और मैम गौशाला जो प्रबंधक है दे आर नो फ्रेंडली, मतलब कि बिल्कुल भी उसके फ्रेंडली नहीं थे बिल्कुल भी ऑनलाइन करने के लिए. तो एक तो उनको इसको इसमें ना उसको इस बेस पे लाना कि वो आप इसको लॉगिन करके उनको एक हमने खुद में यहाँ पे बैठ के सबका आईडी बनवाया. ठीक है, योर स्टेकहोल्डर्स आर लिटिल डिफिकल्ट. हाँ, स्टेक होल्डर वेरी डिफिकल्ट. प्रोसेस तो सेम है ना? नहीं मैम, प्रोसेस सेम है, लेकिन इसको क्या है, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो इसमें नाउ अब हम इसमें जो नया करने जा रहे हैं उसमें ये है कि जैसे उसमें जितनी भी गौशालाओं में मतलब इन ब्रीडिंग काऊ है उसके जो सारा हमारे पास डेटा आ गया ना आज की, मतलब कितने कैस्ट्रेशन हो गया, स्ट्रीट काऊ कितने हैं अभी तक, कितने उसके अंदर वो चले गए. तो हम इसके ऊपर आगे स्कीम उसी के बेस पे करने जा रहे हैं ना सारी जो भी स्कीम है. जैसे अभी हमारी ईटीटी स्कीम बनने जा रही है. Yes, the data collected is going to be important. हाँ, डेटा कलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस.
और स्ट्रे काउ जितना जितना ज्यादा हम उसको अमाउंट बढ़ाएं तो स्ट्रे काउ जितने भी गौशालाओं के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं ना, ये फार्मर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रे काउ है। तो वो जितना भी स्ट्रे काउ है वो गौशाला के अंदर इसी के कारण वो सारा का सारा उसके अंदर जा रहा है। अगर ये प्रोसेस एक दूसरे, जैसे आप बीकानेर जैसलमेर उधर जाए तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सिटी से, जैसे पहले वो जिले में आते थे तो उसका बहुत ही डिस्टेंस है। तो हर गौशाला इसके अंदर अटैच भी नहीं थी। हमने ये सभी गौशालाओं को इसको इंक्लूड किया है इसके अंदर लेकर इसको, कि मुझे सभी गौशाला इसके अंदर जुड़ जाए, उसका कुछ ठीक ऐसा। है, the sector is important. हम्म। ठीक है, it's okay. हाँ Thank you. राइट, थैंक यू मैम। सर आपने बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है कि हमें पता चलना चाहिए कि कितने एनिमल्स हैं हमारे यहाँ और उनका क्या करना है। यस सर, मतलब मेनली सर एक्चुअली में क्या है कि इसको अकाउंटिंग को सिस्टम को तो डेवलप किया ही है सर, लेकिन इसमें मेनली हमारे को ये रहता है ना सर, जितना अब जैसे मान लो कैस्ट्रेशन कितना हुआ, क्योंकि हर बार है ना इनफर्टाइल काउ प्रोड्यूस होती है। अगर मान लो कैस्ट्रेशन ऊपर से गौशाला में नहीं होता है, मान लो कितने ब्रीडेबल बुल है उनके पास, ये डेटा हमारे पास आता है। मिल्क काउ कितनी है, विदाउट मिल्क काउ कितनी है, उसकी इनफर्टिलिटी कितनी है, हम उसके कैंप्स लगवा सकते हैं, मतलब कि इनफर्टिलिटी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। ये डेटा जो काउ से इनफर्टिलिटी का सबसे ज्यादा वहां पे काउ जो स्ट्रे काउ होती है जो बेनिफिशियरी नहीं होती, तो ये डेटाज भी हमारे पास सारा का सारा कलेक्शन आता है। उस हिसाब से फिर हमारी स्कीम्स बनेगी। ये भी स्टार्टिंग है, थर्ड फेज है। इसके बाद जो हमारी स्कीम्स बन रही हैं इसके ऊपर की कितनी इनफर्टिलिटी काउ वगैरह है, इस चीज को हम प्रोसेस इसी के थ्रू करेंगे कि ठीक है, फिर बाकी सारा एक डेटा बेसिक में बना लिया है। तो ये आने वाले टाइम फ्यूचर के लिए सारे स्ट्रे काउ को गौशालाज में लाके और इनब्रीडेबल मेल और मिल्क काउ पे कन्वर्ट करने के लिए थ्रू प्रोसेस है सर, एक इनिशियली है। थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, is my screen visible, sir? Yes, ma'am. Yes. Okay. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I'm Sri Vidya. I'm working as Municipal Commissioner, Dachepalli. Today, I want to present my project on behalf of Dachepalli Nagar Panchayat. My project is pumping of raw water from Krishna River through a floating boat system. So let's get started. This is the brief route map of my presentation. First, I will give a brief introduction of my town, and then we will move on to the challenges encountered with the existing water supply scheme, and then we will delve into the alternate solutions. Then I will explain the project in detail, and we will conclude with the future roadmap. So, okay, moving on to the introduction of my town. Dachepalli is a newly formed Nagar Panchayat in the state of Andhra Pradesh. It was formed by merging two Gram Panchayats, namely Dachepalli and Nadikudi. The area of the town is 57.31 square kilometers, and the population is around 36,590 according to the 2011 census, but it may project up to 41,000 at present. The town shares a proud history of Palnadi Yuddham in the history of AP. And the main economy of the town is based on mining, cultivation, and the industrial estate also. The town also accommodates an industrial estate, which mainly constitutes of cement industries, pharma industries, and limestone industries. At present, the municipality is serving catering services to nearly 12,000 households. So now moving on to the topic of the day, that is the water supply scheme of our town. Actually, the major water source of our town is the Krishna River at Pandugala village. Earlier, we used to have a submerged intake well with a capacity for 40 HP to pump the raw water from the river and then transport it to the water treatment plant in order to supply to the public. And with that capacity, we are able to serve only 40 LPCD, that 40 liter per person per day. But as per standard, it has to be 135 LPCD. So it is one of the issue with that existing model. And
and then the major going to the major issue. Actually, the intake well was constructed in the year 2000, where the water level used to be at very low compared to the current level. But in 2008, due to the construction of Kulishendra project, the water level suddenly went up at that particular place. So that due to the submerged intake well, whenever it is used to get repairs, we couldn't. It became very difficult for us to repair that. And as the water level is as the water has been submerged under the river, so it became so we have no option but we have to pump water from ground and supply and at the which are present at the treatment plant and supply to the whole town. But pumping of groundwater through power bores is very highly power consuming, and they often incurred with the repairs due to heavy load, because with that power bus we have to supply water to the whole town. So it became quite essential for us to look for alternate solution. So now moving on to the alternate solution, this is the conventional model for pumping raw water from a river or a water body. That is, we have to construct a intake well with a bridge, so that the motors are mounted to withdraw water from that river, and our human resources can go and monitor the motor irrespective which is mounted at the maximum water level. So, but the issue with this model is we have to spend around 2 to 3 crores only for the structure. But ours is a small Nagar Panchayat, and we could not afford that model. So we have thought of various models, and we have arrived at our floating boat model, which can resist the fluctuating water levels. So this is the floating boat model. We have the project cost of this model is 50 lakhs, where the structure only costed 10 lakhs. But earlier in the conventional model, the structure only itself cost about 2 to 3 crores. So we made a change in this, and we have mounted 2 motors on this boat and a panel boat to operate. Here we can see that picture, the 2 motors and a panel boat, which can be easily operatable by any staff. So this model can draw water from irrespective of any water level both in dry as well as flood seasons. So discussing about the hydraulic parameters of our model, it has designed with the capacity to pump 4,000 cubic meter per hour, and the panel board is designed is mounted is of variable frequency type, which which consumes very less power. So with this installed capacity of those motors, we make sure that they are able to pump 135 LPCD instead of 40 LPCD in the erstwhile case. So, and you can wonder that how this boat will able to cater able to resist the fluctuating water levels. So for that, the structure of the boat is connected to the distribution line through a flexible pipe, so that the position of the boat can be adjusted in according to the water level. So we have designed it in such a way that it can draw water even in the driest season at the dead zone also. But this cannot be possible with the conventional type of intake well we have seen earlier. So currently the town supplies 7 MLD of water, which is 3 MLD with the previous case. We have designed it in keeping in with the view the water requirement for the year 2050. So I want to say at this point of time, the uniqueness of our project lies in reducing the cost of the water supply scheme in compared to the conventional scheme by around 70 to 80%. Earlier it cost around 2.5 to 3 crores, but we are able to finish this project at less than 50 lakhs. So that is the uniqueness of our project, and it can resist any level of the water, irrespective of any level of the water.
So and going to the future roadmap, keeping this floating boat model to pump rainwater as a source, we have designed some to distribute to ensure 100% distribution of water to the entire town under Amrut scheme. For that, we have proposed 13-kilometer raw water pipeline at the whole from the raw water pump house, and 20-kilometer distribute line in the whole town, and a OHSR with the capacity 5 MLD, and to cater nearly 10,000 household service connections. This is our future with the future roadmap with this model. And finally, I want to conclude this presentation by proudly saying that our model stands as a savior to design the water supply for financially crunched towns who are in need to draw water from the river. Thank you so much. I am open to questions, ma'am. Well, very good project. Actually, somebody thought, instead of going by the routine structure of constructing the big concrete structure, you have gone for a floating boat model. That means somebody really thought about the cost implication, and that's a very good idea, innovative idea for doing this. Very good work. Thank you. No specific question. Thank you. Good work. Thank you, sir. प्रेजेंटेशन देने शहरी जनसंख्या की समस्याओं कठिनाइयों को और उनको विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करने के लिए और शहरी आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ये अभियान बजट घोषणा के तहत चालू किया गया। आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट टू सेट अप द स्पेटियल framework of the city for the delivery of sustainable development and enhanced quality of life for the citizens. जो मेन मोटो है इसका ये है कि इस तरीके का एक स्थानीय विकास हम फ्रेमवर्क विकसित कर पाए सिटीज का, जिससे न केवल सतत विकास की जो अवधारणा है और सतत विकास की अवधारणा पुष्ट हो सके, बल्कि इसके साथ ही जो इसके सिटीजन्स है उनके जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सके। इसी प्रकार से जो दूसरा मेन मोटिव है इसी में समाहित है कि जो शहरी जन है उनको रोजमर्रा की जिंदगी, उनके प्राथमिक राइट्स के लिए और उनके लीगल राइट्स के लिए, इवन उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए उनको आम रोजमर्रा की जिंदगी में और जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो कारण कि एक तो लंबी प्रोसीजर, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स अभियान है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो उन तक जिस स्थिति में पहुंचना चाहिए था उनका प्रक्रिया का सिंप्लीफिकेशन नहीं होने की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से, लॉन्ग प्रोसीजर होने की वजह से, कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं का ज्ञान नहीं होने की वजह से ये अभियान चलाया गया है कि एक ही छत के नीचे उन लोगों को सभी प्रकार की जो उनके राइट्स है, प्राइमरी राइट्स है और उनकी जो सर्विसेज उनके लिए जो बनाई गई है उनकी डिलीवरी उनके तक सुनिश्चित की जा सके। साथ ही में जो इसी में प्रकार से आप देखेंगे तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, द इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ अर्बन बॉडीज कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन सो दैट एडिशनल इकोनॉमिक सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू अर्बन डेवलपमेंट। जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके साथ एक समस्या ये रहती है कि जो उनको जो आर्थिक संसाधन है कहीं ना कहीं उनको खुद ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार से एड मिलता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, साथ जिससे वजह से उनको कई तरह के सर्वाइव करना, ना केवल उनको अपना लोकल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए, बल्कि अपने खुद के कर्मचारियों की भुगतान, पेमेंट का भुगतान करने के लिए भी उनको बहुत जद्दोजहद होती है। तो कहीं ना कहीं ये अभियान उनको इतना आर्थिक रूप से इतना समृद्ध करने के लिए चलाया गया है कि वो खुद की आवश्यकताओं की न केवल पूर्ति कर सके, एक बेहतर आर्थिक डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा कर सके। प्रशासन शहरों के संघ 2 अक्टूबर से चालू किया गया और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्या इनमें कार्यक्रम रखे गए हैं। पट्टा, इस कार्यक्रम में निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम का जो सबसे मूल रीड है, जैसा हम जानते हैं कि शहरी जो जन है उनके लिए रोटी, कपड़ा, उसके बाद जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पट्टे की, उसके लैंड का, रहवास का उसको अधिकार मिले।
ये मकसद सरकार का रहा है। इसमें जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है रहने के लिए, लोग लाख सालों से रह रहे हैं लेकिन उनको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इस तरीके के कभी भी उनको ये पट्टे से ये हो जाएगा कि उनको विधिक अधिकार उसको दिया गया इस कैंपेन के माध्यम से। इसमें विभिन्न तरीके के पट्टे इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर पट्टा, स्टेट ग्रांट का पट्टा, इवन राजस्थान पहला स्टेट बना है जो 501 रुपए में 69 एक्ट के तहत पट्टा उसने जारी किया है। पट्टा मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लोगों को ना केवल विधिक राइट मिला है, उसके अलावा लोग मकान बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, पढ़ाई करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको बेच नहीं सकते, अपने भवन को, लैंड को बेच नहीं सकते। तो एक तरीके से राइट देता है कि वो उसको सेल आउट कर सके, ट्रांसफर कर सके। ये उसको प्रॉपर्टी का राइट प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है। दूसरा है हाउस कंस्ट्रक्शन। मकान का राइट होने के बावजूद भी लोग शहरी क्षेत्र में देखने में आता है कि लोग बना नहीं पाते और उनको बहुत से ऑफिसेस के चक्कर निकालने पड़ते हैं, लोग पीढ़ियां गुजर जाती है। भवन का पट्टा है, जमीन है, लेकिन बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो अभियान में क्या किया, पट्टे के साथ साथ ही हमने उसी पट्टे के साथ ही उनको हाउस कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी अलाउड करी। इसके अलावा लीज, खांचा लैंड रिलेटेड मैटर्स, नेम ट्रांसफर, सब डिविजन, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ लैंड। नेम ट्रांसफर इतना इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि कई लोगों को कि उन्होंने बेचान कर दिया, वो से हैंड ओवर कर दिया, लेकिन नाम नहीं बदलता है। पुरानी प्रॉपर्टी का पुरानी मालिकाना हक चला रहता है, उससे कई तरीके की लिटिगेशन उपज, ना तो आदमी बेच पाता है, ना कंस्ट्रक्शन कर पाता है, ना उस पर लोन ले सकता है। तो ये पेचीदगियां समाप्त करने के लिए नेम ट्रांसफर, सब डिविजन, रिकंस्ट्रक्शन की व्यवस्था इसमें करेगी। स्लम्स के लिए, स्लम्स की जो इश्यूज है, स्लम बड़ा शहरीकरण में सबसे बड़ी एक समस्या आती है। स्लम्स का लगातार डेवलपमेंट हो जाता है और एक बर्डन की तरह निकलती है और उससे जुड़ी कई तरीके की कॉम्प्लिकेशन स्लम्स में आती है। तो स्लम्स की समस्याओं के समाधान के लिए स्लम्स का डिनोटिफिकेशन, जहां अच्छा विकास हो गया उनको डिनोटिफाइड करके, जिससे न केवल वहां की लैंड की कीमत बढ़ सके, जो वहां सालों से लोग रह रहे हैं उनको पट्टा मिल सके, और उस पट्टे के लिए कई तरीके के प्रोविजन किए हैं कि उसको ट्रांसफर किया जा सके। ये स्लम्स के लिए किया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, वुमेन सपोर्ट, एसएचजी को डेवलपमेंट किया गया है और स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स इसमें चलाए गए हैं। हाउस होल्ड टॉयलेट्स, रोड, सीवर, पार्क कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर रिलेटेड मैटर्स इसमें शामिल किए गए इस कैंपेन में। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी सोशल स्कीम्स इसमें चलाई गई, जैसे इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना, सीएम कल्याण योजना, सीएम चिरंजीवी बीमा योजना, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, न्यूट्रिशन मिशन। कुल मिलाकर जो 6 विभाग है, हमारे बड़े विभाग है, जैसे 8वां पॉइंट आप देख रहे हैं, एसजेडी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, पीएचडी एनर्जी, पीडब्ल्यूडी और महिला बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग की जितनी भी योजना उनको एक छत में लाकर लोगों तक मुहैया कराई गई है। उसी दिन इसके लिए प्री कैंपों की व्यवस्था की गई और उसी दिन उनको इन सब चीजों से लाभान्वित किया गया। राजस्थान पहला स्टेट बना है जिसने इस अभियान के तहत अपनी शहरी जनों को इतना ज्यादा रिलैक्सेशन और इतनी ज्यादा रिबेट्स प्रोवाइड किए गई है, साथ में इतने रूल्स का सिंप्लीफिकेशन किया गया है। For first time in Rajasthan, freehold पट्टा at 501 under 69 एक्ट। जैसा मैंने पहले भी बताया, 69 एक्ट के तहत 501 रुपए में पट्टा दिया गया है। पहले जो राजा महाराजाओं, जागीरदारों और कहीं भी किसी अधिकार के तो लोगों के पास कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट होता था, लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को पट्टा नहीं मिल पाता, हमेशा उनको अनसर्टेनिटी बनी रहती थी और एक अनिश्चितता बनी रहती थी, ना लोन ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते, उनको राइट नहीं मिलता था। इसके तहत उनको विधिक राइट दिया गया है, उन लोगों को पट्टा प्रोवाइड कराया गया है 501 रुपए में। कच्ची बस्ती का जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे आप देख, पट्टा आर आल्सो इशूड टू द पीपल लिविंग इन द नोटिफाइड स्लम्स टिल 31/12/2021 15
15/8/2009 पहले जो कच्ची बस्ती में निवास कर रहे थे उन लोगों का पट्टे का जो कट ऑफ डेट था वो था 2009। इसमें हमने 31/12/2021 तक इसको बढ़ाते हुए कि जो लोग 31/12/2021 में कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं वो लोग उसका विधिक अधिकारी हैं, वो पट्टा ले सकते हैं। इसको इस तरीके बढ़ाया गया। इश्यू ऑफ पट्टा कच्ची बस्ती एट द 10% रेट ऑफ रिजर्व रेट और डीएलसी रेट ऑफ द एरिया एडिशनल कब्जा फ्रॉम 110 स्क्वायर यार्ड टू 200 स्क्वायर यार्ड whichever is lower। 10% कच्ची बस्ती के पट्टे पर 10% रेट रखी गई रिजर्व रेट और डीएलसी रेट जो भी कम है उसको रखा गया। इसके अतिरिक्त पहले 110 स्क्वायर यार्ड का जो पट्टा दिया जाता था उसको बढ़ाते हुए 200 स्क्वायर यार्ड का किया गया है। पट्टा ऑफ कच्ची बस्ती कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 3 years ऑफ इश्यू इंस्टीट्यूट ऑफ 10 years। पहले जो पट्टा 10 साल में ट्रांसफरेबल था, लोगों की सहूलियत को देखते हुए 3 साल में उसको ट्रांसफरेबल बनाया गया है। और डिनोटिफिकेशन की जो पावर सारी की सारी जो बोर्ड में होती थी, इसको तुरंत उसका निस्तारण करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी को इसके लिए ऑथराइज किया गया। नेक्स्ट, रेगुलराइजेशन फीस आप देख सकते हैं कि इतना, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा हमने रिलैक्सेशन दिया है। तो अबाउट 85% डिस्काउंट ऑन रेगुलराइजेशन ऑन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट अप टू 500 स्क्वायर मीटर। इसी प्रकार से रेगुलेशन फीस हैज बीन रिड्यूस्ड इन रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ एरिया मोर देन 1500 स्क्वायर मीटर। सेम लाइक 70 to 85% discount in regulation rate of commercial plot and 15 to 30% for industrial plots. 100% exemption in interest and penalty in EWS, LIG, MIG, auction and ornament। जो आवासन की और शहरी निकाय की जो EWS कमजोर सेक्शंस है, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लो इकोनॉमिक ग्रुप्स और मीडियम इकोनॉमिक ग्रुप है, उनके ऑक्शन और अलॉटमेंट में 100% जो उनका बकाया जो बच रहा है उसमें 100% एग्जम्पशन दिया गया, उनको छूट दी गई भुगतान करने के लिए। 60% डिस्काउंट्स ऑन द आउटस्टैंडिंग लीज अमाउंट ऑन डिपॉजिटिंग द आउटस्टैंडिंग लीज एंड एडवांस वन टाइम लीज। एक बार में लीज का भुगतान, जो आउटस्टैंडिंग लीज एक बार में भुगतान कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको 60% तक डिस्काउंट दिया गया। इन ऑल द रूल्स द इंटरेस्ट रेट हैज बीन चेंज फ्रॉम 15% to 9%। इन सभी रेगुलेशन रूल्स जो भी थे, जिनमें पहले 9% तक, उसमें 9% तक इंटरेस्ट रेट लगती थी, 15 लगती थी, उसको 9% तक किया गया। स्ट्रिप ऑफ लैंड जो खाचा भूमि होती है और जिसका पृथक से हम कोई भूखंड का दो भवनों के बीच में खाचा भूमि है, लोगों का कब्जा है और उसमें पृथक से भूखंड का निर्माण नहीं सृजित होता, लोगों का सालों से कब्जा आ रहा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है, लोगों रहते आए उस पे, उसमें आवास करने लगे, ऐसे लोगों को भी खाचा भूमि में लगभग 50% डिस्काउंट उसके अलॉटमेंट रेट्स में रखा गया। इसी प्रकार से बिल्डिंग परमिशन, जब व्यक्ति पट्टा ले लेता है तो बिल्डिंग परमिशन के लिए ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए उस बिल्डिंग परमिशन को भी हमने 500 ऑन प्लॉट्स अप टू 300 स्क्वायर मीटर एंड 1500 ऑन प्लॉट अप टू 300। तो 500 रुपए तक का रखा है हमने 300 स्क्वायर मीटर का, और 1500 रुपए रखा है हमने जो 300 से 1500 स्क्वायर मीटर का है। इसी प्रकार से नेम ट्रांसफर की जो फीस रखी गई है 1000 रुपीज फॉर 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट एंड ओनली 4000 फॉर 1500 स्क्वायर मीटर, जो बहुत ही चेंज ऑफ लैंड यूज। इसी प्रकार से अप टू द 5% डिस्काउंट ऑन डिस्पोजिंग ए वन टाइम अमाउंट प्रोविजन डिपॉजिट इन फॉरेन, जो पहले 1 साल में दी जाती थी, व्यक्तियों को देखते उनको स्थितियां नहीं होती थी, उसको 1 साल उसको इंस्टॉलेशन कर दिया गया 4 साल में, उसको वन टाइम देने की जगह उसको 4 साल। थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे, ठीक है मैम, आपका टाइम अप हो गया है। ठीक है मैम। नेक्स्ट पट्टा, नेक्स्ट ये मैं बता चुका हूँ पट्टा। ये स्टेप टेकन जो हमने, सबसे बड़ी ये रहा है कि मैडम जो जिसकी हमने व्यू रचना करी, और सबसे पहले जो व्यू, ये आप देख सकते हैं कि इनको एक हमने डेडिकेटेड पोर्टल बनाया, हमने रखा है कि लोगों को घर बैठे ही वो चीज मुहैया हो सके। इसके लिए सबसे पहले तो कैंपों का, शिविरों का आयोजन करवाया हमने 2 से 3 दिन का, उसी वार्ड में कैंपों का आयोजन करवाया, लोगों को वहीं करवाया, सारा पूरे
डिपार्टमेंट के सभी लोग वहीं बैठे। इसके लिए पोर्टल की अलग से व्यवस्था करी गई कि लोग ऑनलाइन भी उसमें व्यवस्था कर सके। जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए हमने ऑफलाइन तक की व्यवस्था करी। इसके अलावा IT एक्सपर्ट्स नगर मित्र जो पहली बार राजस्थान में किया गया, जो नगरीय जो लोगों का फॉर्म भराने से लेके लोगों को समझाने से लेके लोगों को एप्लीकेशन पहुंचाने तक का उन लोगों ने उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का काम किया है। इसके अलावा किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की गई, हर संभाग में IS लेवल के PCS लेवल के ऑफिसरों को संभाग प्रभारी लगाए, डिवीजन प्रभारी OICs लगाए गए, उनके द्वारा वर्कशॉप की गई, छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, वहां के लोकल एक एक आदमी को बुलाया गया जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी समस्या है उनको सुना गया और उन्हीं के आधार पर पूरा फ्रेमवर्क इसमें तैयार किया गया, किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकते हैं, किस तरीके से चीजों को इसमें से शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसी अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रभारी लगाए गए। इसके अलावा जिन लोगों ने बेहतर तरीके से काम किया, जिन लोकल बॉडीज ने, उनको अवार्ड हमने उनके बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड दिए गए उनको। The publication wide publication of discount concession other information has been given through various communication method created। अलग से इसके IEC गतिविधियां चलाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इसके अलावा सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी, डोर टू डोर पब्लिसिटी। इसके अलावा इसमें बहुत पहली बार राजस्थान ऐसा कि पट्टे के लिए वोटर लिस्ट के आधार पर राजस्थान ने सर्वे कराया है। हर वोटर के घर, हर घर 21 लाख घरों का सर्वे कराया है। पहली बार ऐसा सर्वे हुआ है कि किस व्यक्ति के पास पट्टा नहीं है और कौन व्यक्ति के आवास के विदाउट आवास रह रहा है। उन लोगों को हमने टारगेट किया, एक एक का रजिस्टर मेंटेन किया, टीम को भेजा, उन लोगों से ना केवल ये हमने डिटेल लिया बल्कि उनको आवेदन दिया, आवेदन करवाकर प्रीकेम में तैयारी करवाई और उसी के अलावा से ये स्थिति है कि हम सेचुरेशन की स्थिति जो हमारा टारगेट आया था 5,48,000, आज की तारीख में हम देखेंगे अब हमें इसमें कि हमने 5,48,000 जो हमें टारगेट दिया गया था उसको कब का हम अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार MPs MLAs लोग हमारे जो अर्बन जन रिप्रेजेंटेटिव उनकी खुद की VC ली गई, उनको DOs लिखे गए। माननीय मंत्री महोदय CS महोदय के द्वारा लगातार इसका फीडबैक लिया गया। इसके अलावा 15 जुलाई से डिविजनल कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और लीडरशिप के अंदर इसको चलाया गया, जिससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि पट्टे में हमने हमारे पास ये टोटल जो हमारे पास टोटल हमने 21,51,504 बेनिफिट किया है लोगों को। ये विभिन्न योजनाओं में इन 21,51,504 लोगों को बेनिफिट दिया है विभिन्न स्कीम्स के तहत। हमारे पास 23,46,786 एक ह्यूज अमाउंट हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, उसमें से हमने 21,51,504 का अभी तक डिस्पोज कर दिया, जिसका हम जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिकल संबल भी प्रदान करने का हमारा रहा है। तो लगभग 1398.28 करोड़ रुपए की इसमें अर्निंग हुई है। पट्टे में हमने लगभग 5,84,113 पट्टे अभी तक जारी कर दिए। 6,30,173 एप्लीकेशन आई हमारे पास आई है। इसी प्रकार हाउस कंस्ट्रक्शन में 1,06,35 डिस्पोज आउट ऑफ 1,08,479 एप्लीकेशन। Sorry to disturb you, sir. Please conclude. एक मैं लास्ट ये दिखाना चाहता हूं कि ये सुनहरी और पॉजिटिव न्यूज है। आप देखेंगे ये वर्कशॉप का है, जब हमारे सारे हमारे ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण जो सभी नीचे लेवल तक, जिला लेवल तक गए, जिला लेवल में शामिल होकर सभी समाचार। इसी प्रकार ये देखें आप कि जो बीच की है 13 साल बाद मिला पट्टा, ऐसी हजारों न्यूजेस है। 70 साल के बुजुर्ग जो लगा रहा था चक्कर, उसको SDM ने सौंपा पट्टा। इसी प्रकार से प्रशासन शहरों के अभियान में पहले पैसे में पट्टा नहीं था, अब आदमी को 501 रुपए में पट्टा मिल रहा है। तो ऐसे इस तरीके के सुगंध अनुभव इसमें रहे हैं। और जो सरकार का जो ध्येय था कि समावेशी विकास को लेकर सरकार चल रही थी, संवेदनशीलता को लेकर चल रही थी, शहरी जन की जो कठिनाइयां और समस्याओं को लेकर चल रही थी, इस अभियान ने काफी हद तक प्लानिंग के साथ
उनकी प्रॉब्लम को समझते उनका निस्तारण किया है, और यही इसकी सफलता है जो इनकी ये तस्वीरें बोल रही है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? No. Basically, you have regularized people who are living wherever they were living, right? यस मैम। So, ठीक है, I have no specific questions. गुड वर्क सर। सिस्टम को इम्प्रूव करना थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और आपने तो बड़ा वॉल्यूमिनस काम किया है, और कुछ प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश की है। सो इट्स अ गुड एफर्ट। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है जब प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र ना कर पाएँ, क्योंकि लीगैलिटी वाला इशू उसके अंदर में आ जाता है। सर हमने ट्रांसफर का भी पट्टा दिया है सर, उसको पहली बार ये किया है। इट्स अ गुड एफर्ट। आई नो इस लीगल मैटर्स को सिंप्लीफाई करना और किसी सिस्टम को चेंज करना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने काफ़ी इसमें मेहनत की है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड वर्क। थैंक यू।